सर अगर मैंने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है और वो एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है या थोड़ा डिले हो रहा है तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। ऐसे डाउट्स आई होप आपके मन में भी आते होंगे और आपके थ्रू हमारे पास भी आते हैं। गाइस द सिंपल आंसर इज कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन अभी नहीं हो रहा है या थोड़ा डिले हो रहा है, तो जो प्रिपरेशन आपने की है उस प्रिपरेशन की हेल्प से आप दूसरे एग्जाम भी तो दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ग्रेड बी, तो इफ यू हैव अपियर्ड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फिर क्या होगा अगर मान लीजिए एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है, सो यू कैन यूज दैट प्रिपरेशन फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, यू कैन यूज दैट प्रिपरेशन फॉर द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, you can use that preparation for the NABARD grade examination, for the PFRDA grade examination, for the NPS grade examination and नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर। सो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। यू आर गिविंग अदर एग्जामिनेशन, थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपकी जो मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द प्रिपरेशन यू कैन यूज द सेम, एंड फर्दर 20-30% जो आपको एडिशनल पढ़ना है वो आप कर सकते हैं, right? And about one such examination I'm talking about here in this video, that is A to Z of the NPS grade A examination. So here as a part of this video we would be discussing about the NPS grade A examination. काफी सारे एस्पिरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है, दिस दैट इज व्हाई दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो, जहां पे हम एनपीएस ग्रेड ए एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एंड आई विल टेल यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबी ग्रेड एग्जामिनेशन, then this is one such examination which you can give with the help of RBI grade B preparation or the SEBI grade A preparation. Exactly, if I tell you about the SEBI grade A preparation, तो वहां से exactly pattern is same, syllabus is same, except one sector, that is pension sector. So 95% of the syllabus is same, ठीक है। I am not saying similar, I am saying same, ठीक है। 95% of the syllabus is same between the SEBI grade A and NPS grade A, between the PFRDA and the SEBI grade A, right? And if I tell you about the PFRDA and NPS grade A examination, so 100% syllabus is same. 100% syllabus is same. So even if you are preparing for NPS grade A, so you can give PFRDA grade A. So intentionally or unintentionally, you would be preparing for different examination as well. आपको awareness नहीं है, that is a different thing, and that is why here we are discussing on the A to Z of this particular NPS grade A examination, ताकि जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए आप ये ना सोचे कि इसकी मेरी प्रिपरेशन नहीं है। आपको अभी से पता रहेगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी हेल्प से व्हाट एग्जामिनेशन यू कैन गिव, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन एंड पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन, तब तो एग्जैक्टली आप 100% इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन के साथ 100% का यहाँ पे ओवरलैप है, सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन के साथ 95% का ओवरलैप है, ठीक है, एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट आई कैन से 60% का ओवरलैप है, right? So now let's discuss about the NPS grade A examination. So different areas we would be discussing, like eligibility क्या है, what is the pattern of the examination, ठीक है, what is the syllabus of the examination, what salaries and allowances and other benefits you would get as NPS grade A officer. So now start with the eligibility first, because if you want to appear for any examination you must be eligible to give that particular examination. So as on the cutoff date your age shall not exceed 30. So यहाँ पे qualification can be discussed under two subheads, that is age and the educational qualification. So age wise your age should not exceed 30 as on the cutoff date. Now the question is what is the cutoff date? So that changes every year, that fluctuates every year based on the notification. तो notification कब आती है उसके हिसाब से यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो होता रहता है कट ऑफ डेट में, राइट। बट रिलैक्सेशंस आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, 5 years ऑफ रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ओबीसी कैंडिडेट, 3 years ऑफ रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, 10 year ऑफ रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड। एंड फर्दर यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जनरल स्ट्रीम जनरल कैटेगरी से है, सो ही वुड बी गेटिंग 10 years ऑफ रिलैक्सेशन। इफ ही इज फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी देन ही वुड बी गेटिंग 13 years ऑफ रिलैक्सेशन। इफ ही इज फ्रॉम द एससी एसटी कैटेगरी देन ही वुड बी गेटिंग 15 years ऑफ रिलैक्सेशन। So this is about the age eligibility. Now moving on to the educational qualification. तो educational qualification अगर आपके पास इनमें से कोई भी qualification है, then you would be eligible to appear for the NPS grade A examination. Like master's degree in any discipline. So if you are having master degree in any discipline, you can appear for this examination. If you do not have this, you must have this bachelor's degree in law. अगर वो भी नहीं है, you must have the bachelor's degree in engineering. अगर वो भी नहीं है, then you must be a chartered accountant, you must be a company secretary, you must be a cost and management accountant, or you must be a chartered financial analyst. तो इनमें से कोई एक qualification भी है, then also you would be eligible to appear for the NPS grade A examination, right?
देन मूविंग ऑन टू द पैटर्न पार्ट, ठीक है, पैटर्न इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई टोल्ड यू यहाँ पे 100% पैटर्न इज सेम। तो जो हमने डिस्कस किया था सेबी के लिए, जो हमने डिस्कस किया है पीएफआरडी के लिए, सेम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 इज देयर। सो 3 फेजेस में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 comprises 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 comprises 4 components, that is general awareness, reasoning ability, English language and the quantitative aptitude. If I tell you about the number of questions, so 80 questions will be there, 20 questions each from these components of 25 marks. तो 100 marks का पेपर होगा, 80 questions would be there, which means every question would be of 1.25 marks, ठीक है, 1.25 marks के सारे questions रहेंगे। टाइम वुड बी गिवन 60 मिनट्स। तो आपको 1 घंटे में यहाँ पे 80 क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स के। एंड पेपर 2 विल बी द based on the questions will be based on 7 components, that is commerce and accountancy, management, finance, costing, companies act, pension sector and the economics. So these 7 subjects would be there, and which is exactly same for the paper 2 of phase 1 and paper 2 of phase 2, which means you have to prepare for these components once, जिसकी help से you would be focusing on paper 2 of phase 1 also and paper 2 of phase 2 also, right? So here 50 questions would be there in paper 2 of 100 marks, which means यहाँ पे 2 marks का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड टाइम गिवन वुड बी 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100। तो फेज 1 वुड बी ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका फेज 1 रहने वाला है, राइट। एंड यहाँ पे टाइम वुड बी 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो 1 आवर 40 मिनट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको 1 आवर 40 मिनट्स वुड बी प्रोवाइडेड कंप्लीटली फॉर द फेज 1, ठीक है। फेज 1 के लिए आपको 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। फर्दर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस, दैट देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है। तो 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे कट ऑफ जो रहेगा वो 40% वुड बी द एग्रीगेट कट ऑफ, विच मीन्स यहाँ पे पेपर वाइज कट ऑफ तो आपको करना है। पेपर वाइज मतलब पेपर 1 का आपका सेपरेट कट ऑफ रहेगा, यहाँ पे पेपर 1 का सेपरेट कट ऑफ रहेगा, दैट इज 30%। तो 30% इज द पेपर 1 कट ऑफ, मतलब 100 में से आप अगर 30 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ इज ऑन द पेपर बेसिस, ठीक है, पेपर के लेवल पर यहाँ पे कट ऑफ है। तो यहाँ पे अगर आपका कॉन्ट सेक्शन वीक है फॉर एग्जांपल, तो यू कैन लीव द कॉन्ट सेक्शन एंटायरली। यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिकली यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट वीक है, लाइक क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, सो दे कैन लीव दैट कंपोनेंट, उसको वीक ही रहने दीजिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अदर कंपोनेंट्स यू कैन स्कोर 30 मार्क्स। यू जस्ट हैव टू स्कोर 30 मार्क्स इन द पेपर 1 एंड यू जस्ट हैव टू स्कोर 40 मार्क्स इन द पेपर 2। तो अगर यहाँ पे 40 मार्क्स ला रहे हैं, यहाँ पे 30 मार्क्स ला रहे हैं, सो आपका यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 इंडिविजुअली क्लियर हो गया। बट इन ऑर्डर टू क्लियर फेज 1 यू हैव टू स्कोर 80 मार्क्स, मतलब आपको इस तरीके से मार्क्स लाना है कि आपका जो एग्रीगेट है वो 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन है 40% वुड बी द एग्रीगेट कट ऑफ फेज 1, विच मींस आउट ऑफ 200 40% वुड बी बेसिकली यहाँ पे 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आपको लेकर आने हैं आफ्टर सिक्योरिंग इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। फर्दर यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेड इन फेज 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2। तो यहाँ पे फेज 1 के मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मार्क्स ऑफ फेज 2 एंड इंटरव्यू विल ओनली बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द मेरिट। फेज 1 इज एन एलिमिनेशन स्टेज, तो यहाँ पे फेज 1 के मार्क्स जो है उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। सो इवन यू आर स्कोरिंग 200 आउट ऑफ 200, ठीक है, एंड इफ समवन इज स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 200, ठीक है, then in that case you both are equal and at the phase 2 level you both be at the same level। तो यहाँ पे मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे फिक्स है फेज 1 की। यू हैव टू मोर फोकस ऑन द पेपर 2 ऑफ फेज 2 विच इज सेम एज पेपर 2 ऑफ फेज 1 एज वेल। मूविंग ऑन टू द फेज 2 पार्ट, तो फेज 2 में अगेन 2 पेपर्स वुड बी देयर, पेपर 1 एंड पेपर 2। Paper 1 would be of descriptive English, right, which is of 100 marks, completely descriptive. 60 minutes time would be provided and 3 questions would be there. One is essay writing, one is précis writing and one is the reading comprehension, which is of 100 marks, ठीक है, और आपको यहाँ पे 60 minutes का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 is exactly same as we have discussed in the case of phase 1 paper 2। these 7 subjects, ठीक है, इन्हीं 7 subjects में से 50 questions would be there of 100 marks, time allocated would be 40 minutes, ठीक है। सो टोटल 200 मार्क्स का फेज 2 भी हो रहा है। फेज 1 वुड आल्सो बी ऑफ 200 मार्क्स एंड फेज 2 वुड आल्सो बी ऑफ 200 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे बात करें कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू कॉल लेटर। तो यहाँ पे नया कॉल लेटर मिलेगा जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फेज 2 के लिए आएंगे। रोल नंबर वुड बी सेम।
देन यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल स्ट्रीम्स में अप्लाई किया है, देन इन दैट केस आपका पेपर 2 वुड बी डिफरेंट, अलग स्ट्रीम के लिए हो सकता है। आपने यहाँ पे जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया हो सकता है आपने जनरल स्ट्रीम और यहाँ पे रिसर्च स्ट्रीम के लिए किया हो, या लीगल और रिसर्च स्ट्रीम के लिए किया हो, तो आपका पेपर 2 अलग अलग होगा, पेपर 1 विल बी सेम। सो पेपर 1 ऑफ फेज 1 विल बी सेम, पेपर 1 ऑफ फेज 2 विल बी सेम, पेपर 2 वुड बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्ट्रीम्स, right? And also यहाँ पे negative marking would be there for the paper 2 because paper 1 is the descriptive English in phase 2, so negative marking is not possible in the case of descriptive English. So for the paper 2, because that is completely objective, यहाँ पे negative marking would be imposed. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ पे एनपीएस की इंटरव्यू की बात करें यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, तो किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में अगर आप इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो कंप्लीटली अप टू यू, यहाँ पे नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं कैसे करूंगा इस, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, डू नॉट थिंक अबाउट इट, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, आप हिंदी में भी इंटरव्यू यहाँ पर दे सकते हैं। सो यहाँ पे दोज द मार्क्स दैट यू वुड बी ऑब्टेनिंग इन फेज 2, उसका जो वेटेज रहेगा वो 50% का रहेगा, विच इज ह्यूज, वेरी ह्यूज, ठीक है। 50% का वेटेज आपका फेज 2 का रहेगा और 50% का ही वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, विच मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू की यहाँ पे फेज 2 की जो प्रिपरेशन आप करेंगे उसका वेटेज सिर्फ 50% ही रहेगा, रेस्ट ऑफ द 50% का जो वेटेज है वो किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू को डू नॉट टेक इट लाइटली, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। देन मूविंग ऑन टू द सैलरी एंड अलाउंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, और सभी के लिए मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो गाइस सैलरी की बात करें तो पहले प्रोबेशन पीरियड देखते हैं, प्रोबेशन वुड बी ऑफ 1 ईयर, ठीक है, जब से आप ज्वाइन करेंगे 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। देन फर्दर पे की बात करें यहाँ पर, सो टोटल सीटीसी कंसिस्टिंग ऑफ पे एंड बेनिफिट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्केल ऑफ पे वुड बी ऑफ अप्रॉक्स 25 लाख पर एनम, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर 25 लाख पर एनम ग्रॉस सीटीसी रहेगी आपके, जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स है उनको मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पीएफआरडीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पे बेसिकली पीएफआरडी नहीं है, यहाँ पे ये एनपीएस है, ठीक है। तो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल पेंशन स्कीम में वो रहेगा। देन ग्रेड अलाउंस यू वुड बी गिवन, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, लर्निंग अलाउंस एंड स्पेशल ग्रेड अलाउंस, तो ये सारे के सारे अलाउंस जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड बी गेटिंग बेनिफिट्स, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लीव फेयर कंसेशन हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड नॉन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर बोथ। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आई रिफ्रैक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, एजुकेशन अलाउंस हो गया, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम एंड स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर। सो इन सब का जो ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो ग्रॉस सीटीसी वुड बी 25 लाख पर एनम, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द फ्रेशर एज वेल एज दोज हु आर हैविंग द एक्सपीरियंस। 25 लाख पर एनम, ठीक है। और उसके बाद आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, यू वुड बी गेटिंग अ वेरी गुड एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट यू वुड बी डूइंग, राइट। बट यहाँ पे इस जो सैलरी जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं इसको पाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, राइट। तो व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस की बात करें यहाँ पर तो फेज 1 का सिलेबस इज नोवेयर डिफाइंड, राइट, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर वी हैव डिकोडेड द टॉपिक्स फॉर यू। सो दीज 4 कंपोनेंट्स आर देयर इन द फेज 1 पेपर 1, ठीक है। फेज 1 के पेपर 1 में 4 कंपोनेंट्स हैं, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो इफ आई टेल यू अबाउट द फेज 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे इसके लिए दीज टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर फॉर द क्वांट कंपोनेंट, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, पोर्ट्स एंड स्ट्रीम, फर्दर मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन mensuration 2D and 3D. So these all topics you can prepare for the quant section. For the reasoning section, these all are the topics like alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency, right. So these all are the topics for the reasoning component. Then English की बात करें, so these topics you can prepare in the English component, तो आपकी preparation अच्छी हो जाएगी। Parts of speech, structure of sentence, then subject verb agreement, nouns, pronouns, verbs, tenses, modals, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions,
Then articles, adjectives, determiners, adverbs, active, passive, rearrangement of parajumbles, cloze test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms, and one word substitution. Right. So these all are the topic with respect to the English component. General awareness की बात करें, phase 1 general awareness, because general awareness is asked only in the paper 1 of phase 1. ठीक है. कुछ करंट अफेयर्स पेपर 2 में पूछ लेते हैं, स्पेशली इन द फाइनेंस सेक्शन, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बाकी यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका मोस्टली पेपर 1 में ही पूछा जाता है. तो यहाँ पे बहुत वास्ट करंट अफेयर्स नहीं है, 25 मार्क्स का ही कंपोनेंट है गाइस. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स एंड अदर करंट अफेयर्स, सो दैट वुड बी सफाइस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ पेपर 1 ऑफ फेज 1. क्लियर. Moving on to the paper 2 part, तो paper 2 of phase 1 and paper 2 of phase 2 दोनों सेम ही. I told you 7 subjects are there. So let's discuss them one by one. First of all, commerce and accountancy. So these all are the important topics, not the important topics, they are the exclusive topics that are mentioned in the syllabus only. So even if you are from the non-commerce background, you can prepare these topics very well. बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही limited topics हैं, आप बहुत ही जल्दी इनको cover भी कर सकते हैं. And I personally know a lot of candidates, those who are from the engineering background, those who are from the science background, they are preparing these topics and they are doing well in the examination as well, right? Then further management. So if you are preparing for RBI grade B examination, or if you are preparing for SEBI grade A examination, PFRD grade A examination, then also यहाँ पे basically आप जो है इन टॉपिक्स को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. अगर नहीं तो आप नए तरीके से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. दीज टॉपिक्स आर वेरी बेसिक इन नेचर और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स भी है. फर्दर फाइनेंस की बात करें, जनरल फाइनेंस का पेपर है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, सेबी एग्जाम, पीएफआरडी एग्जाम, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं. अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी दीज आर जनरल टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस विच यू कैन इजीली प्रिपेयर इन अ टाइम पीरियड ऑफ 20 to 25 days. देन कॉस्टिंग की बात करें, तो ये कॉस्टिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है दैट वी सी इन द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, दैट वी सी इन द पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन. सो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से, आपने सेम ही चीज़ है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगर आप उनकी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप ये टॉपिक्स बहुत आराम से ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें कुछ भी हैक्टिक नहीं है. देन कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट अपने आप में काफी बड़ा कंपोनेंट है, बट यहाँ पे यू जस्ट हैव टू कवर वेरी लिमिटेड टॉपिक्स, वेरी लिमिटेड चैप्टर्स, लाइक चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27. ठीक है, बहुत ईजी है गाइस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकल चीजें ही आती हैं, बहुत ही फैक्चुअल चीजें आती हैं, तो बहुत ईजी है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द पेपर 2. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट. देन मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक्स पार्ट. इकोनॉमिक्स में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, राइट, और नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, ये वाला पार्ट तो आप पढ़ते ही हैं. बी वाला पूरे सारे टॉपिक्स, नेशनल इनकम भी आप कवर करते हैं. अगर आप सेबी और पीएफआरडी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेम ही है, फिर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, राइट. फिर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. यू आर प्रिपेयरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑलरेडी. अगर नहीं भी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी, देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर दीज टॉपिक्स. बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है और बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक्स नहीं है, दे आर वेरी इजी इन नेचर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेंशन सेक्टर गाइस. यहाँ पे पेंशन सेक्टर्स के लिए ये यहाँ पे 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं विच यू हैव टू प्रिपेयर. अगेन बहुत ही लिमिटेड है. तो यहाँ पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 95% ऑफ द सिलेबस इज सेम. तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेंशन सेक्टर सेपरेटली प्रिपेयर करना है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएफआरडी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ठीक है, देन इन दैट केस यहाँ पे 100% का ओवरलैप है. फिर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. आप यही मान लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं पीएफआरडी के लिए, आप ऑटोमेटिकली एनपीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज ऑल, दिस इज एंटायर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द एनपीएस ग्रेड ए एग्जामिनेशन गाइस. एंड बात करें फेज 2 के पेपर 1 की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 क्वेश्चंस वुड बी देयर: ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द प्रेसी राइटिंग, राइट. So guys, this is all discussion with respect to the NPS grade A examination and I hope आपको awareness हुई होगी. So this was an awareness video. क्योंकि होता क्या है, कई बार हम prepared रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे, हमें पता नहीं चलता कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब एग्जाम हो रहा है. हमें लगता है ये एग्जाम मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, पर आपने प्रिपरेशन की होती है. एंड दैट इज वाई आई कवर्ड दिस टॉपिक हियर, दिस वीडियो हियर. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आई हैव launched this particular course, that is a RBI Grade B 2025 foundation course, comprehensive course, and this is a Laksh batch. So as a part of this course, basically you will get the comprehensive, the holistic live classes for the preparation of RBI Grade B for all the components of phase 1 as well as phase 2. तो यहाँ पे extensive and comprehensive live classes would be there. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं. So extensive and comprehensive live classes would be given.
ठीक है। देन फर्दर आपको यहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट मिलेगा डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए। यू वुड बी हैविंग द नोट्स फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ द टॉपिक। देन यू वुड बी हैविंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगा, जिसके थ्रू आप जब भी चाहे किसी भी मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर यू फील लॉस्ट इन द प्रिपरेशन, जब भी आप लग रहा है कि मोटिवेशन बहुत कम है। एंड गाइस, लाइव क्लासेस में अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंप्लीट द सिलेबस ओनली। ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, but you might not be from the finance background, you might not be from the commerce background or economics background. So that is why here in this live classes, basically we are providing things from very scratch, considering that you are completely new to the component. So even if you do not have any prior knowledge in all these subjects, nothing is required, you just need to join the live classes. From there we are starting the things from very scratch, focusing on the foundation building, and then we are taking you to the requirement of the examination. And that is why, based on these two features, I am saying this is one of the most important course. ठीक है, that is extensive and comprehensive live classes and one-on-one mentorship. इसका ये मतलब नहीं कि फीचर अच्छे नहीं, दे आर द टॉप नॉच क्वालिटी, लेकिन पर्सनली आई लव दीज टू फीचर्स, एंड बेस्ड ऑन विच आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट course for the preparation of RBI grade B exam. And guys, if you're a serious aspirant, this is the perfect time. ठीक है, इससे ज्यादा लेट मत करिए, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी चीजों को कंप्लीट करने में. एंड फ्रेंड्स, here we are assuming कि those who are the aspirants, those who want to become an officer seriously, genuinely, so cost should not be the barrier in their journey, and that is why we are providing huge discounts on our courses. And also along with that, we are providing you the mechanism through which you can avoid through which you can basically avail मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. तो एक तो डिस्काउंट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साथ साथ आप यहाँ पे और भी डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड. तो लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू क्लिक ऑन द लिंक. ठीक है, यू कैन सी ऑल द डिटेल डिलीवरेबल्स देयर, आराम से देखिए. ठीक है, और वहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिलेगा व्हेन यू गो फॉर द सब्सक्राइबिंग द कोर्स. तो वहाँ पे बेसिकली यू कैन सी द अप्लाई कूपन एंड डू अप्लाई द कूपन प्रकाश, सो यू कैन सी अ drastic discount again on the final price, and that will make the course more affordable for you. And also do join our WhatsApp channel, इसको ज्वाइन करिए. ठीक है, इसके थ्रू बेसिकली यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स, एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी यहाँ पे डिटेल में ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. ठीक है, सो लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट. ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से चेक करिए, टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एंड ऑल्सो गाइज यूज द कूपन कोड फॉर having a huge discount. So this is all with respect to this video. I hope this was an informative video for you. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.